देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं ऐसी कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। काशीपुर विधानसभा के गौरांगडी अंचल में एक दलीय कर्मी सम्मेलन में कर्मियों को काशीपुर विधायक सपन कुमार बेलथरिया ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस तैयार हो जाने का संदेश दिया। इस मौके पर पुरुलिया जिला परिषद के जन स्वास्थ्य एवं परिवेश कर्माध्यक्ष सोमेन बेलथरिया, काशीपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुदेव हेम्ब्रम, काशीपुर पंचायत समिति के उपाध्यक्ष कमल बावरी तथा तृणमूल कांग्रेस गौरांगडी अंचल के अध्यक्ष नंदलाल दे, उपाध्यक्ष लाल मोहन भट्टाचार्य, तृणमूल नेता विभास भट्टाचार्य, सपन कुमार भट्टाचार्य, सुप्रियो हालदार के अलावे प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्ष सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार काशीपुर विधानसभा के गौरांगडी अंचल अंतर्गत नेताजी लाइब्रेरी मैदान में आयोजित कर्मी सम्मेलन में आसन्न विधानसभा चुनाव के लेकर जोरदार तैयारी करने की अपील की गई। विधायक ने कहा, बूथ स्तर पर की गई तैयारियों के अनुसार ही चुनाव की जीत सुनिश्चित की जाती है, अतः सभी अभी से तैयार हो जाएं। उन्होंने सभी से कहा कि क्षेत्र के सभी गांवों में घर घर जाकर लोगों के आरोपों और अभावों को सुनें और उसका समाधान करने का प्रयास करें। इसके साथ ही हम सभी से जो भूल त्रुटियां हुई है, लोगों के पास जाकर उनसे जानने का प्रयास करें। उन्होंने आसन्न विधानसभा चुनाव में हर साल में सफलता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का जोरदार शब्दों में अपील किया है। তখন থেকে চলে আসছে। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি করেছেন না, যে মেডিকেল কলেজ সারা রাজ্যে কম ছিল, আজকে অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে। তার সাথে সাথে আমাদের জেলাতে আমাদের পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে। অনেক ডাক্তার এখান থেকে আগামী দিন বেরোবে। আমাদের এই ডাক্তারের সমস্যা আমরা এমনিও তো আমি জানিয়েছি, গৌরাঙ্গি থেকে শুরু করে অন্যান্য যে হাসপাতালগুলো আছে যেখানে ডাক্তার নেই সেই হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কিন্তু আপনাদের জন্য করা হচ্ছে, আপনাদের এলাকার জন্য করা হচ্ছে। আজ থেকে প্রায় ৩-৪ বছর আগে এই যে গৌরাঙ্গি বিভিন্ন পানীয় জলের ব্যবস্থা, তালাজুড়ি থেকে শুরু করে সুতাবই থেকে শুরু করে পানীয় জলের পাইপ লাইন, যে নলবাহিত পানীয় জল, সেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে এমন খুব কমই গ্রাম থাকবে, এক দুটো হয়তো থাকবে যে গ্রামগুলো ঢালাই করা হয়নি, যে গ্রামগুলো পিসিসি ঢালাই করা হয়নি, খুব কম গ্রাম থাকবে। এই উন্নয়নগুলো কি বিগত দিনে হয়েছিল? এগুলো আপনাদেরকে মানুষকে বোঝাতে হবে। সম্মেলন করেছিলেন, তাতে কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিলেন? কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে কাজ করেছেন, সেই কাজের উন্নয়নের ডালা নিয়ে, উন্নয়নের ডালা তো আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন, মানুষের হাতে দিয়ে দিয়েছেন, সেই ডালার প্রচার করার জন্য বাড়িতে বাড়িতে যেতে হবে। আর আমাদের মধ্যে যারা বুথে পোস্টে আছেন, বুথে কাজকর্ম করছেন, তাদেরকে আরও অ্যাক্টিভ হতে হবে। যারা বুথে বসে আছেন তাদেরকেও সক্রিয় করতে হবে। অন্যান্যভাবে যারা এখনো বলতে পারেননি তাদেরকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে 69খানা পরিকল্পনা আমরা কর্মীদের হাতে দিয়ে দিচ্ছি, সেগুলো নিয়ে তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অবশ্যই প্রচার করবেন এবং আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেসে যাতে ব্যাপকভাবে লিড হয়। আমাদের লোকসভায় একটু রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল, কারণ আমরা তো বলছি যে আমাদের কর্মীরা একটু অলসতায় এসে গেছিলেন, যে আমাদের তো এগুলো বাড়ি, আমাদেরই ভোট করবে, কিন্তু মানুষ অভিমানী, মানুষ সেখানে অভিমান করেছে। আমাদের বিভিন্নভাবে বিজেপির হিন্দু মুসলিম বালাকোট পূর্বমা বিভিন্ন কিছুতে গিয়ে সেখানে ভোট, আমাদের একটা বিধানসভা তো কাশীপুর বিধানসভা তো ভোটের অঙ্ক কমেছে, কিন্তু আমরা বলতে পারি কাশীপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই ব্যাপক ভোটে লিড করে মমতা ব্যানার্জির হাত আরও শক্ত করবে। মমতা ব্যানার্জি তৃতীয়বারের জন্য আবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবে এবং 200-র উপরে সিট নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবে। অনেকে অনেক কিছু বলছেন, রাজ্যে তো রাজ্য নেতৃত্বরা অনেক কিছু বলছেন, যারা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা এসব এসছেন, পরিযায়ী শ্রমিকের মতো যারা এসছেন, তারা পরিযায়ী পাখির মতো, পরিযায়ী শ্রমিক না, পরিযায়ী পাখির মতো। যেমন শীতকালে দেখুন আমাদের যে বল হাঁস বলা যায়, সেগুলো বিভিন্ন ড্যাম্পে পাবেন, সেগুলো পরিযায়ী পাখি। সেরকম এখানে উস্কানিমূলক কাজ, উস্কানিমূলক কথা, বিভিন্ন মানুষকে মিথ্যে কথা আজকে তিনি বলছেন। গতকাল তিনি বলছেন, আমাদের যে বিজেপির যে পর্যবেক্ষক যিনি এসছেন, তিনি বলছেন তাদের নাকি সরকার, মানে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পী ভাতা দেন, কিছু কিছু দেন, পরে আরও
ফুল করে দেবেন। শিল্পী ভাতা কেন্দ্রীয় সরকার তার জানা দরকার যে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো শিল্পী ভাতা দেননি। মানनीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547356154। तृणमूल सरकार के कुशासन के खिलाफ भाजपा की ओर से मान बाजार इंडकुरी पेट्रोल पंप से बुधवार को एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो बाद में मान बाजार क्षेत्र की परिक्रमा कर एक पथ सभा में परिणत हो गया। पथ सभा में बोलते हुए भाजपा नेता राजू बनर्जी ने कहा कि तृणमूल को पता चल गया है कि 2021 तृणमूल फिनिश हो रही है, इसलिए उनका माथा ठीक नहीं है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा आई, वह वहां से चली गई, वे अब पुरुलिया नहीं आएंगी। उन्होंने दावे के साथ कहा कि भाजपा चुनाव में सभी सीटें जीतेंगी। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं और गुंडों का क्या होगा। व्यंग्य करते हुए राजू बनर्जी ने टिप्पणी की, कहा कि तेरा क्या होगा कालिया, कहकर तृणमूल को ताना मारा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि पुलिस जिन तृणमूल नेताओं की दलाली कर रहे हैं, तृणमूल नेता उन्हीं की कारों में आग लगा रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो हम पुलिस से पूछते हैं आप कहाँ हैं? फिर यह देखा जाता है कि पुलिस टेबल के नीचे है और हम उन पुलिसकर्मियों को कहते हैं कि अब तृणमूल की दलाली छोड़ दें, हम आपको चिन्हित कर रहे हैं। राजू बनर्जी ने कहा कि हम निश्चित रूप से सत्ता में आ रहे हैं और केवल आप जानते हैं कि उस समय आपके साथ क्या होगा। इसलिए मैं आपको इस जनसभा के मार्फत आपको चेतावनी दे रहा हूं कि पुरुलिया अब भाजपा के कब्जे में है। जुलूस में पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती, भाजपा पर्यवेक्षक विवेक रांगा, जिला सचिव अब्दुल अलीम अंसारी, राज्य नेता अजित सिंह सरदार, महिला नेता गौरी सिंह सरदार, मान बाजार के लड़ाकू नेता बानी पदो कुंभकार सहित अन्य शामिल थे। আমার ভাইকে বললে বলছে ভাইপোর নাম বলুন। আরে ঘোড়াটির নাম বলার কি আছে? তৃণমূলের লোকেরাই তো বলে দিচ্ছে। জ্যোতির্ময় ভাইপোকে চিনতেন নাকি 2013 আপনারা চিনতেন? কোথা থেকে উঠা হয়ে গেল? প্রথমে এলো তার ব্যাংক ব্যালেন্স কি, জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট, আর এখন কত ব্যাংক ব্যালেন্স? 1300 কোটি টাকার মালিক। কোথা থেকে এলো বাবা টাকা? পিসি বলে দিয়েছে 75% আমাকে দাও আর 25 তোমরা নাও। আর 75% যদি কালীঘাটে গিয়ে থাকে ওই টাকাও আমরা বার করব, ইঞ্চি ইঞ্চি করে বার করে জনগণের ভেতর দিয়ে দেবো। কোনো চিন্তা করবেন না বন্ধু, আমার আপনার টাকা গরিবের টাকা খেয়ে বসে থাকবে, খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করবে, কোনো চিন্তা করবেন না। এর নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। बुधवार को जामुरिया बोरो ऑफिस में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वहां उपस्थित रहे पूर्णशशि रॉय, शेखा शानदार, साधन पॉल और अन्य नेतागण मौजूद रहे। हिंदुस्तान केबल्स रिहैबिलिटेशन कमेटी ने उद्योग और कृषि समेत विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 5 सूत्री मांगों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग नए उद्योगों और हिंदुस्तान केबल्स के विभिन्न विकास के लिए थी, जिसमें अनुबंध श्रमिकों का बकाया भी शामिल था। और पतन भी हम लोग देखेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो नीति को अपना, ये जो क्वार्टर में आदमी रह रहे हैं या अगल बगल में झोपड़ी करके रह रहे हैं या दुकानदार हैं दुकान करके বক্তব্য রেখেছেন। সমস্যা অনেকগুলোই আছে, যেমন সমস্যা আছে দোকানদারের, যেমন 15 বছর
নির্বাচন কমিটি যে এলাকার যে কোয়ার্টারগুলো সেখানেও যাদের সমস্যা আছে এবং এখানকার কার্যত কোনো অফিসার এখন নেই। হিন্দুস্তান কেবলসে হিন্দুস্তান কেবলসের যে তুগলকি সিদ্ধান্ত চলছে, শ্রমিকদের প্রতি, কন্ট্রাক্টর লেবারের প্রতি বঞ্চনা, আনক্লেম টাকা নিয়ে টালবাহানা, হিন্দুস্তান কেবলস কর্তৃপক্ষ যে শ্রমিকদের টাকা নিয়ে যে পূর্তি করছে, এরই প্রতিবাদে এবং এর সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি ও কৃষিনীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে জনবিরোধী বিল পাস করছে এবং মানুষ মারা নীতি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের বিক্ষোভ সভা। আপনি এতদিন ধরে আন্দোলন করছেন, কোনো কি শুরু হওয়া কিছু পাওয়া গেল? আমরা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা কন্ট্রাক্টর লেবারদের অন্তত পিএফ যেটা দিচ্ছিল না, সেই পিএফটাকে আমরা আবার চিঠিগুলো সমস্ত বাড়িতে আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং তার সাথে সাথে আমরা হিন্দুস্তান কেবলসে যত দুর্নীতি হয়েছে, যত অকশনের নামে চুরিচামারি হয়েছে এবং প্রায় আমাদের কাছে যতটা তথ্য আছে 700 কোটি 800 কোটি টাকার মতো এরা যে টাকা নয়ছয় করেছে, তারই ইয়েতে আমরা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্সেও আমরা 3রা সেপ্টেম্বর আমরা কমপ্লেন করেছিলাম। 17ই সেপ্টেম্বর ওনারা আমাদেরকে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে যে এই কমপ্লেন নাম্বার দিয়ে যে ওনারা হিন্দুস্তান কেবলসের তদন্ত ভার গ্রহণ করেছে এবং তদন্ত শুরু করছে। আগামী দিনে কিভাবে আন্দোলন? আগামী দিনে আমাদের বিধায়ক মহাশয় আমাদের সাথে আছেন। বিধায়ক মহাশয় বলেছেন যে এখানে শ্রমিকদের পাশে আছি, তাদের যে দাবি দাবা আছে, তাদের যে বিভিন্ন রকম বিষয়ে যে বকেয়া টাকা আছে সেটা ফেরতের জন্য আমাদের সাথে উনি পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তার সাথে সাথে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে আশেপাশে যে বসতিগুলো আছে, সেই বসতিগুলোতে যে মানুষগুলো আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা যাবে না, এর অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন। যেহেতু এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে, এই বিষয়ে উনি একদম আমাদের সাথে আছে। আমরা পুনর্বাসন কমিটির পক্ষ থেকে যেহেতু উনি আছে সেহেতু আমরাও ওনার সাথে আছি। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষ মহাজন, হিন্দুস্তান কেবলস পুনর্বাসন কমিটি সম্পাদক। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने सुंदरीकरण के लिए नगर निगम द्वारा निर्मित उत्कर्ष पार्क का उद्घाटन बुधवार को किया गया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी, पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन, जिला शासक पूर्णेंदु कुमार माझी ने संयुक्त रूप से पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारीगण मौजूद थे। इस मौके पर प्रशासक बोर्ड चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल के विकास के लिए हम लोग एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान भी हम सब ने मिलकर कार्य किया। जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस पालन किया जाएगा। इसे लेकर जिला के विभिन्न जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सेमिनार, आलोचना सभा व तर्क वितर्क कार्यक्रम के माध्यम से मनाएंगे। वहीं जिला के सभी महापुरुषों के स्टैचू पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। उक्त बातें आसनसोल पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने उषाग्राम अग्निकन्या भवन में पत्रकार सम्मेलन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस यानी 26 जनवरी 1949 के दिन हमारे देश का महान संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे सारे देश में 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई भी बात भविष्य में व्याख्या विश्लेषण के लिए नहीं छोड़ी। देश चलाने में अस्पष्टता के लिए जिन बातों की जरूरत थी उन सबको संविधान में जगह दी। संविधान के अंतर्गत कानून में बराबरी, अपनी बात कहने की आज़ादी, देश में कहीं भी जाने बसने की आज़ादी, सम्मान से जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि भारत में हर नागरिकों को हासिल है। भाजपा सरकार आने के बाद दलितों को मिलने वाली नौकरियों में 90% तक की कमी आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भाजपा की सरकार संविधान में दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण को लागू नहीं करना चाहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ लिख सकें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने कई राज्यों में खरीद पक्ष की राजनीति कर सत्ता हासिल की है। बाबा साहेब के बनाए संविधान पर चलने का दावा करने वाली भाजपा ने पैसा और लालच की राजनीति से केवल संविधान का अपमान करने का काम किया है। पत्रकार सम्मेलन में जिला तृणमूल कांग्रेस जिला के कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ परियाल, हरिराम सिंह,
जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता तापस बनर्जी, अशोक रुद्र मुख्य रूप से उपस्थित थे। सीनियर रिपोर्टर अब्दुल मनाफ के अनुसार 26 नवंबर को होने वाले स्ट्राइक के सपोर्ट में गिरजा मोड़ से आश्रम मोड़ तक एक हिस्टोरिकल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इसका नेतृत्व फॉर्मर MP बंसगोपाल चौधरी, पार्थो मुखर्जी, अमित द्युति घोष, अनिंद्या दास, मैत्री दास, खलील खान, मनोज दास व अन्य लोगों ने किया। यात्रियों की सुविधा तथा भीड़ से निपटने के लिए पूर्व रेलवे हावड़ा और मुंबई, भागलपुर और रांची तथा हावड़ा एवं धनबाद पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें चलाएगा। 02321 हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट स्पेशल, 02322 मुंबई हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल, 03403 रांची भागलपुर स्पेशल रांची से, 02339 हावड़ा धनबाद सुपरफास्ट स्पेशल, 02340 धनबाद हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल। आइए सुनते हैं विवाह के ऊपर एक विचार, शायरा निगार आरा की जुबान से। शादी बड़ा अजीब सा सवाल है। शादी एक कानूनी बंधन है। शादी एक कानूनी बंधन है और समाजी बंधन भी है। शादी जरूरी भी है और जरूरियात भी है। शादी जरूरी भी है और जरूरियात भी है। मशहूर कहावत में कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, अब जो ना खाए वो भी पछताए। और मेरा ख्याल है कि अपना लाइफ पार्टनर हम ख्याल हो, अपना लाइफ पार्टनर हम ख्याल हो और उसे हम ख्याल बनाया जाए, ताकि जिंदगी की जो रेलगाड़ी होती है वो आसानी से चलती रहे। शादी एक पाक रिश्ता है। शादी एक पाक रिश्ता है और नस्लों को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। निगारा 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हालात लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। बुधवार को बीरभूम जिले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में आयोजित जनसभा में जमकर हिंसक टकराव हुआ है। यहां तक कि गोली चली है और बमबारी भी हुई है। कई जगहों पर हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। बीरभूम के सिउड़ी में भाजपा की सभा होनी थी। इसमें शामिल होने के लिए पूरे जिले और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे थे। आरोप है कि रास्ते में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने रोका और मारा पीटा। भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्हें रास्ते में रोककर उन पर गोली चलाई गई। नानूर के सिमुलिया गांव में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हिंसक टकराव हुआ। इसमें अमित मंडल नाम का भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी पेट में गोली लगी है। कार्यकर्ता पर गोली चलने की बात पता चलते ही अन्य जगहों पर मौजूद भाजपा समर्थक भी उग्र हो गए थे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर फेंके गए। इसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस से लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई भाजपा कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के हमले में एक सिविक वॉलेंटियर घायल हुआ है। केवल सिमुलिया गांव ही नहीं, बल्कि सैतिया के भ्रामरकल गांव में तृणमूल कर्मियों के कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले किए। कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है, उसमें दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बीरभूम के इलम बाजार में भाजपा के कार्यकर्ताओं की बस को रोक दिया गया। अब अंत में प्रस्तुत है मैसेज ऑफ द मोमेंट। रेस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वट एवर वी गिव टू अदर्स, it will return to us with profit.